So we are discussing the pre-fertilization events. So under pre-fertilization events, what are the two events? Formation of gametes and transfer of gametes. So formation of male and female gametes we have already finished. Okay. Now today we'll discuss this transfer of gamete. So transfer of gametes. So the transfer of gametes takes place by a process called pollination. ठीक है. So our today's topic is pollination. I hope you don't have any doubt in formation of gamete. So let us start with pollination. So let me first tell you what is pollination. It is the mechanism of transfer of pollen grains from anther to stigma of same flower or two different flowers of same plant or different flowers of two different plants of same species or allied species. Okay. So what is pollination? It is the transfer of pollen grains. आपको देखो इसके बाद what is the next event? The next event is fertilization. So fertilization के लिए आपका मेल एंड फीमेल गैमेट को कांटेक्ट में आना जरूरी है. So who is carrying the male gamete? The pollen grain is carrying the male gamete, so it is the male gametophyte. And who is carrying the female gamete? The embryo sac is carrying the female gamete, so it is the female gametophyte. So and these male and female gametophyte are contained in, so the male gametophyte that is pollen grain, it is contained in the anther. ये किस में होता है? आंथर में होता है. Similarly your female gametophyte, who is female gametophyte? That is embryo sac, and it is contained in the ovule, and ovule is present inside the ovary, and ovary is the part of कार्पेल. ठीक है. तो इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि स्टिग्मा इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन. तो पोलन ग्रेन आपका जाकर स्टिग्मा में गिरेगा. देन स्टिग्मा विल अलाउ द पोलन ग्रेन टू जर्मिनेट, and then it will, the male gamete from the pollen grain will reach the female gamete present in the ovule or embryo sac. Now that we'll discuss in details after pollination, that is the next event, that is fertilization. So now let us see what are the different types of pollination. Types of pollination. Okay, the first one is autogamy. This autogamy is otherwise known as self
pollination or homogamy. Okay. And what is this autogamy or self pollination? It is the transfer of pollen grains from anther to stigma of the same flower. Okay, so suppose say this is a flower, and this is the male reproductive part, that is stamen, anther, and this is stigma. So when the pollen grain from the anther reaches the transfer to the stigma of the same flower, देखो ये आंथर से स्टिग्मा तक जब पहुंच जाता है तो इसको हम बोलते हैं ऑटोगैमी और सेल्फ पॉलिनेशन. ओके, यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है. एनी फ्लावर that opens, why I am writing opens, because there are some flowers which never opens, कभी open नहीं होते, even they attain maturity, वो कभी open नहीं होते. So जब कोई flower open होता है, and any flower that opens and exposes its anthers and stigma, have mostly both self pollination and cross pollination. Means in such cases autogamy is rare. ओके, अच्छा, अभी ऑटोगैमी, व्हाई, व्हाट इज द रीजन, रीजन क्या है, व्हाई इट इज रेयर, व्हाई द ऑटोगैमी इज रेयर. ठीक है, और इसमें और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द कंडीशंस that promotes ऑटोगैमी. तो देखो एक फ्लावर में आंथर भी है, स्टिग्मा भी है, लेकिन फिर भी उसमें अगर ये दोनों एक्सपोज है, मतलब बाहर से अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन, तो भी सेल्फ पॉलिनेशन रेयर होता है. फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, दोनों anther and stigma are well exposed, but still then it is not having self pollination. तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कुछ तो चाहिए होगा जो फुलफिल नहीं हो पाता सारे फ्लावर्स में, जिसके वजह से इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है. सो दैट्स वाई यू मे गेट ए क्वेश्चन दैट व्हाई द ऑटोगैमी इज रेयर इन द फ्लावर्स which are well exposed, और व्हाट आर द कंडीशंस दैट प्रमोट्स ऑटोगैमी. ऑटोगैमी होने के लिए एक फ्लावर में क्या क्या कंडीशंस होना चाहिए. सो द कंडीशंस आर, 1,
there must be synchrony in pollen release and stigma रिसेप्टिविटी। यानी फ्लावर दोनों है, लेकिन अगर आपका पोलेन रिलीज होने के लिए तैयार हो चुका है लेकिन स्टिग्मा पोलेन को रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है, तभी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या चाहिए? दैट इज सिंक्रोनी, मतलब ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होना चाहिए। मतलब पोलेन मैच्योर हो चुका है और स्टिग्मा भी मैच्योर हो चुका है, सो दैट इट कैन रिसीव द पोलेन ग्रेन्स, तब भी इसमें ऑटोगैमी होगा। ओके, देन व्हाट इज द नेक्स्ट कंडीशन? दिस कंडीशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द anther and stigma should lie very close to each other। ओके, तो मान लो आपका ऐसा कंडीशन है कि आपका स्टिग्मा, ये है आपका स्टिग्मा, मान लो स्टामेन छोटे छोटे हैं, ठीक है, दीज आर द स्टामेन, सॉरी, ओके, अंथर ये छोटे छोटे हैं। सो यहाँ पर ये स्मॉल हाइट से ये हायर पोजीशन में पोलन ग्रेन जाना डिफ़िकल्ट है, इट कैन नॉट रीच अप टू दिस, ठीक है। और उसके अलावा अगर मान लो सेम हाइट में भी है, अगर ये सेम हाइट में स्टिग्मा है एंड दिस इज अंथर, द अंथर्स आर प्रेजेंट लाइक दिस, तब भी आपका पोलन ग्रेन यहाँ पहुँचना डिफ़िकल्ट है। तो इसीलिए हमको कौन सा कंडीशन चाहिए? दोनों सेम हाइट में होना चाहिए, या तो फिर आपका आंथर का हाइट थोड़ा ज़्यादा होगा तो चलेगा, लेकिन दे मस्ट बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। ऐसा होना चाहिए कि दिस इज स्टिग्मा और दिस इज स्टामेन। ओके, ये है आपका स्टामेन। सो दिस इज द suitable condition, but this is not suitable, this is also not suitable, clear? now यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि फ्लावर को ओनली सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या होना पड़ेगा? इट शुड बी बाइसेक्सुअल एंड फ्लावर is close. There are certain plants, अच्छा, इसमें और एक पॉइंट मैं आपको बोल देती हूँ। थर्ड पॉइंट इज they should have self compatibility। ये एक आपका जेनेटिक फैक्टर है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिक फैक्टर इन सम फ्लावर्स द स्टिग्मा do not receive or do not allow the pollen grain to grow or to germinate of the same flower, ठीक है। तो इसीलिए कंपैटिबल होना चाहिए, जो भी पोलन ग्रेन इसके ऊपर आएगा उसी फ्लावर का, उसमें कंपैटिबल होना चाहिए। ओके, दैट इज कॉल्ड सेल्फ कंपैटिबिलिटी। नाउ अभी हम देखेंगे देयर आर सम फ्लावर्स, सो दीज आर द थ्री कंडीशंस, ये हो गया। देन अभी हम देखेंगे प्लांट्स लाइक भायोला, दैट इज योर कॉमन पैंसी। पैंसी आप जानते हो, सबने देखा है, कॉमन पैंसी एंड ऑक्सालीज कॉमेलिना, ऑक्सालीज एंड कॉमेलिना।
ये सब प्लांट्स में क्या होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, टू टाइप्स ऑफ flowers. So what are these two types of flowers? One is chasmogamous and other one is cleistogamous. ठीक है. So what is chasmogamous? Chasmogamous is the open flower, and here the stigma and anther are well exposed. Okay. Now what is cleistogamous flower? This flower never opens. This flower never opens, and in these flowers the stigma and anther lie very close to each other. Okay, so that when the anther dehisces, the pollen grain, because they are very close to each other, the pollen grain falls on the stigma. Okay, so here which type of pollination? Only autogamy or self pollination takes place. But since it is exposed, here rarely autogamy but mostly xenogamy और जेटोनोगामी. ठीक है, तो इसमें आपका ऑटोगामी या फिर सेल्फ पॉलिनेशन के अलावा कुछ नहीं होता, बट इसमें आपका कुछ भी हो सकता है. इट में भी क्लेस्टोगैमी हो सकता है. ओके, सॉरी आई एम सॉरी, इट में भी जेटोनोगामी हो सकता है. ये में भी आपका जेनोगामी हो सकता है, यानी क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है. ठीक है ना. अभी ये क्लेस्टोगैमस फ्लावर का, अब चैस्मोगैमस फ्लावर का तो एडवांटेज सभी को पता है, बट क्लेस्टोगैमस फ्लावर का एडवांटेजेस ऑफ क्लेस्टोगैमस फ्लावर, इसका एडवांटेज क्या है? Since the flower is close, the chance of fertilization is high. It is very high. Then if fertilization is very high, then it leads to formation of assured seed sets even in absence of pollinators. इसमें कोई इंसेक्ट की या फिर विंड की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसको हम पॉलिनेटर्स बोलते हैं. सो इट प्रोड्यूसेस assured seed sets even in absence of pollinators और pollinating agents. इसके बगैर भी आपका पॉलिनेशन होता है. ठीक है. अच्छा, अभी ये जो क्लेस्टोगैमस फ्लावर है, दिस इज द एडवांटेज कि उसमें सीड प्रोड्यूस होना ही है, क्योंकि पोलन ग्रेन और कहीं जाने का चांस नहीं है. तो फर्टिलाइजेशन इज मस्ट, एंड सिंस फर्टिलाइजेशन इज मस्ट, सो आपका सीड बनना तय है. ठीक है. अभी हम देखेंगे हाउ इट इज डिसएडवांटेज. नाउ द डिसएडवांटेज ऑफ
क्लेस्टोगैमस फ्लावर। तो क्लेस्टोगैमस फ्लावर का डिसएडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है ये कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ओके क्योंकि इसमें बार बार सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो इसके जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंजेस नहीं आ रहे। सो इसमें क्या होता है, धीरे धीरे वीकर प्रोजेनी बनना शुरू हो जाते हैं। जो प्रोजेनी होते हैं ना, जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, वो धीरे धीरे वीकर होने लगते हैं। ओके नेक्स्ट, नो वेरिएशन occurs, hence no or less role in evolution। तो आपके इवोल्यूशन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? वेरिएशन। जितना वेरिएशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन होगा उतना जल्दी कोई नया स्पीसीज बनेगा बाय इवोल्यूशन। लेकिन इसमें क्या है, आपका सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। तो सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से इसमें क्या हो रहा है, कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं हो रहा है। सो बिकॉज देयर इज़ नो जेनेटिक वेरिएशन, तो सच टाइप ऑफ प्लांट्स इवॉल्व वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे ये। सो इवोल्यूशन में इसका रोल नील के बराबर है। ठीक है, सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस of Cleistogamous flower. Okay, then the next type of pollination is zettanogamy. What is zettanogamy? It is the transfer of pollen grains from anther to stigma of another flower of same plant। सेम प्लांट, याद रखो सेम प्लांट है बट सेम फ्लावर नहीं है। तो इसका मतलब ये है, एक प्लांट, इस प्लांट में मान लो यहाँ एक फ्लावर है और यहाँ एक फ्लावर है। तो ये जो पॉलिनेशन है यहाँ से यहाँ आपका अगर ट्रांसफ़र हो रहा है पोलन ग्रेन, देन दिस इज़ नोन एज ज़ेटेनोगैमी। ओके, तो ये ज़ेटेनोगैमी की वजह से क्या होता है आपका, इसमें से जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे या फिर प्रोजेनी होंगे, इसका जेनेटिकली दे विल बी सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट। ओके, सो यहाँ पर क्या है, क्योंकि सेम प्लांट का ही जेनेटिक्स यानी क्रोमोजोम का जो जीन्स है जो भी है दैट रिमेन्स सेम, क्योंकि कोई दूसरे प्लांट के साथ इसका फ्यूजन या मिक्सिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ज़ेटेनोगैमी is functionally cross pollination but genetically self pollination। तो अगर हम फंक्शनली देखेंगे तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रहा है, सो इसको हम बोलेंगे क्रॉस पोलिनेशन। बट अगर जेनेटिकली हम देखेंगे तो इसका कोई जेनेटिक्स चेंज नहीं हो रहा है, कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है। सो ये क्या हो गया आपका ऑटोगामी, मतलब ऑटोगामी में भी कोई वेरिएशन नहीं होता। तो सिमिलरली हियर ऑल्सो देयर इज़ नो वेरिएशन इन जेनेटिक्स, या फिर उसके जीन्स में क्रोमोसोमल लेवल पे कोई चेंज नहीं होता, इसीलिए ये जेनेटिकली
Autogamy. This is very, very important. I think it is clear to you. Now come to the third type of pollination. The third type of pollination, I'm sorry, some problem has been occurred. That is xenogamy. Okay, xenogamy or cross pollination or heterogamy. Okay, so what is this xenogamy? It is the transfer of pollen grains from anther to stigma of a different प्लांट. यानी ये एक प्लांट है, ठीक है, इसका फावा से पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट का फ्लावर का स्टिग्मा में जाकर पहुंचता है. सो दिस इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन. ओके, सो दिस क्रॉस पोलिनेशन, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? It brings genetically different types of pollen grains to stigma. ये दो प्लांट के बीच में है, तो इसे कोई भी प्लांट से जो सेम स्पेसीज या फिर एलाइड स्पेसीज है, तो रिलेटेड स्पेसीज है, वहीं से आपका पोलन ग्रेन आ सकता है. तो पोलन ग्रेन, वेराइटी ऑफ पोलन ग्रेन जब आएगा तो इसमें से जो ऑफस्प्रिंग होंगे या फिर प्रोजेनी होंगे, दे विल हैव लॉट्स ऑफ वेरिएशन. ओके, एंड अनदर थिंग इज दैट द क्रॉस पोलिनेशन always requires an agent. ये हमेशा एक एजेंट चाहिए, चाहे विंड हो या आपका वाटर हो या फिर इंसेक्ट्स हो. सो लाइक दिस इट रिक्वायर्स एजेंट्स. नाउ एजेंट्स फॉर क्रॉस पोलिनेशन. क्या क्या एजेंट्स है? द एजेंट्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, एबायोटिक एंड बायोटिक. एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग. सो दिस नॉन लिविंग एजेंट्स इंक्लूड्स मेनली योर wind and water. And biotic mainly includes insects, bat, animals, mollusks. Okay, so there are several organisms, living organisms. Okay, but majority of the plant use biotic agent for pollination. This is in majority plant use this type of agents. Okay, and only very less number of plants prefer to use abiotic agent like wind and water. Now अभी हम देखेंगे कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में क्या क्या एडाप्टेशंस होते हैं.
द पोलिनेशन, सबसे पहले हम एबायोटिक पढ़ेंगे। तो एबायोटिक में पोलिनेशन बाय विंड, तो इसको क्या कहा जाता है? anemophily. This is called anemophily. Okay. Now, इसमें for wind pollination a flower should have certain adaptations. So what are these adaptations? First, the adaptations in flower. Okay. So because pollination is a chance factor, fertilization is a chance factor, मतलब बाई चांस ओनली कोई सुइटेबल पोलन ग्रेन जाकर स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा, ठीक है। सो टू कंपेंसेट, फर्स्ट वन, सिंस द pollination is a chance factor or uncertain, अभी आपका आंथर से पोलन ग्रेन रिलीज हो गया, लेकिन वो रिलीज होने के बाद स्टिग्मा तक तो पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा कोई गारंटी नहीं है। सो इसीलिए टू कंपेंसेट this uncertainty and the loss of pollen grain, the flower produces large number of pollen grains. ओके, सो उसमें पहला क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि इसमें पोलन ग्रेन ज़्यादा प्रोड्यूस। अब वैसे भी आपका हर कोई भी किसी भी तरह का pollination में always the pollen grains need to be produced in larger amount because during transfer from the anther to stigma there is a huge loss of pollen grains. pollen grain काफ़ी सारे वेस्ट हो जाते हैं। ओके, नाउ इसके लिए और क्या चाहिए? pollen grains should be light and non-sticky, ठीक है, लाइट एंड नॉन स्टिकी होना चाहिए ताकि ये इजीली कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय द विंड करंट। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन, अभी हवा में अगर पोलन ग्रेन रिलीज होने के बाद हवा के द्वारा ये दूसरे जगह जाएगा तो उसके लिए क्या आंथर को छुप के रहना है या फिर वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए? येस, ऑफ कोर्स इट इज द stamen should be well exposed. The stamen should be well exposed. Okay, and there are certain cases where the stigma is feathery. In some cases stigma is feathery. Okay, next, the wind, this is very very important, the wind pollinated flowers have such
flowers have single ovule in each ovary. हर एक ओवारी में एक ही ओव्यूल होता है. ओके, नेक्स्ट 6th पॉइंट. न्यूमरस फ्लावर्स आर पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस. numerous flowers are packed into inflorescence. आपको इन्फ्लोरेसेंस पता है, क्लास 11th में आप पढ़े थे. द ब्रांच दैट होल्ड्स ग्रुप ऑफ फ्लावर इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस. टुगेदर इट कंस्टिट्यूट द इन्फ्लोरेसेंस. तो फ्लावर अगर एक साथ एक जगह पर रहेंगे तो आपका पोलन ग्रेन हवा से जब निकलेगा तो बहुत सारे पोलन ग्रेन एक साथ निकल जाएंगे. ओके, नेक्स्ट वन एग्जाम्पल इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, दैट इज कॉर्न कब्स. In corn cob, very important children, the tassels, जो tassels होता है ना, आप देखते हो कॉर्न कब में जो हेयरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, the tassels are the stigma and style. And why they are forming the tassels? क्योंकि इसमें आपका जल्दी से आपका जो पोलन ग्रेन है वो ट्रैप हो जाएगा. टू ट्रैप द पोलन ग्रेन्स. तो अगर ऐसे बहुत सारे हेयरी स्ट्रक्चर होगा तो वहाँ पर आकर आपका कोई भी पोलन ग्रेन आकर फंस जाएगा वहीं पे. ठीक है. सो दिस विंड पॉलिनेशन इज वेरी कॉमन इन ग्रास फैमिलीज. नाउ कम टू पॉलिनेशन बाय वाटर. इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली. ठीक है. एंड दिस पॉलिनेशन इज वेरी रेयर. ओके, और इसमें ये कौन से प्लांट्स में होते हैं? ओनली 30 जेनेरा, यानी जीनस. जो आप पढ़े थे जेनस, वैसे उसका प्लूरल इज जेनेरा. 30 जेनेरा में ही ये दिखाई देता है. एंड दैट टू ऑफ मोनोकोटिलीडन. मोनोकॉट प्लांट्स में वाटर से होता है. और बाकी प्लांट्स आपका जैसे आपका हो गया लिली, वाटर लिली, लोटस, ये सब में क्या होता है? दे आर वाटर प्लांट्स बट स्टिल दे हैव आइदर विंड पॉलिनेशन और इंसेक्ट पॉलिनेशन. ओके, अभी हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या एडाप्टेशन होना चाहिए. एडाप्टेशंस. फर्स्ट, द पोलन ग्रेन्स आर produced in large numbers. Okay, the second point is that the pollen grains are covered by mucilaginous coat. ये क्यों चाहिए? To make the pollen grain waterproof. So this is required to prevent the spoil of pollen grain by water.
वाटर में अगर ज़्यादा देर रहा तो ये स्पॉइल हो जाएगा, इसीलिए उसको रोकने के लिए पोलन ग्रेन्स के चारों तरफ एक म्यूसिलाजिनस कवरिंग होता है। ओके, नेक्स्ट हम कुछ स्पेसिफिक केसेस पढ़ेंगे, जैसे आपका वैलिस्नेरिया, जियोस्टेरा, ये सब में हम कुछ स्पेसिफिक वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स है। सो वाटर पॉलिनेशन इन वैलिस्नेरिया, अच्छा, वैलिस्नेरिया में कैसे पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका, सपोज से दिस इज द सरफेस ऑफ वाटर, दिस इज वाटर सरफेस, ठीक है, एंड बोथ द फीमेल एंड मेल फ्लावर्स आर ग्रोन इन, आर प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट प्लांट। तो ये एक प्लांट है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका मेल फ्लावर हुआ, and this is another plant where the female flower is produced, ठीक है। so this is female flower and this is male flower, ठीक है, and both of them, the female flower has a long coiled stalk, फीमेल फ्लावर का एक लॉन्ग कॉइल्ड स्टॉक होता है। तो जब ये मैच्योरिटी हो जाता है, अपॉन मैच्योरिटी द फीमेल फ्लावर comes to the water surface। सो फीमेल फ्लावर पहले दोनों ही सबमर्ज्ड थे, दोनों ही सबमर्ज्ड थे, डूबे हुए थे, लेकिन अभी क्या हुआ, आपका जो फीमेल फ्लावर है जब मैच्योर हो गया तो दैट कम्स टू द सरफेस ऑफ द वाटर बाय इट्स लॉन्ग स्टॉक। ये लॉन्ग स्टॉक के द्वारा, इसका जो कॉयल स्टॉक हमने बताया था, वो कॉयल स्टॉक के द्वारा ये फ्लावर क्या होता है आपका, दिस कम्स टू द वाटर सरफेस। ये क्या हो गया आपका, फीमेल फ्लावर, ठीक है। बट मेल फ्लावर जब मैच्योर हो जाता है, आइदर द फ्लावर इज रिलीज्ड और द पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड, एंड दिस पोलन ग्रेन्स आर कैरिड टू द फीमेल फ्लावर बाय वाटर करंट। द मेल फ्लावर or the pollen grains released reached the female flower by water current। तो वाटर करंट से ये उनके पास चले जाते हैं, जिसके लिए कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, सिंपली बाय द वाटर करंट दे आर कैरी टू द फीमेल। और ऐसे आपका जाते हुए ऐसा नहीं होता कि सारे पोलन ग्रेन फीमेल फ्लावर तक पहुंच जाते हैं। सो सम ऑफ द फ्यू, ओनली फ्यू पोलन ग्रेन्स रीच द फीमेल स्टिग्मा ऑफ द फीमेल फ्लावर, ठीक है। तभी अभी एक दूसरा केस हम पढ़ेंगे, नंबर 2 इज योर सी ग्रास और जियोस्टेरा। ओके, सो इस केस में आपका क्या होता है, इन दिस केस हियर द pollen grains are ribbon like
and carried to the female flower by water current। तो जब रिबन लाइक है, लाइट है, तो ये आराम से बाय फ्लोटिंग इन द वाटर इट कैन रीच द योर फीमेल फ्लावर। नाउ यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैं आपको एंड में पूछूंगी, ठीक है। यहाँ आप ध्यान देकर अगर सुना होगा तो आप वो क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, अभी हम देखेंगे बायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट में हम मेनली पढ़ेंगे क्या, आपका बायोटिक एजेंट में आपका होता है मेनली बीज, वास्प्स, बटरफ्लाइज, beetles, ants, moths, birds, okay, and bat. These are the common pollinating agent, okay, and among these animals, जितना हमने एनिमल बोला, सबसे डोमिनेटिंग बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट इज इंसेक्ट्स, ठीक है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सबसे डोमिनेंट कौन सा है, इंसेक्ट्स, ओके। अभी ये जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर है उसमें क्या क्या अडेप्टेशंस होते हैं, तो अभी हम देखेंगे इंसेक्ट पॉलिनेशन। इसको क्या कहा जाता है आपका, एंटोमोफिली, ओके। तो इन सच फ्लावर्स द pollen grains are sticky and produced in large numbers। नेक्स्ट, अभी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसीलिए द फ्लावर्स हैव large colorful petals to attract the insects। Next, they produce nectar, okay, नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं जिसको कलेक्ट करके आपका जो मधुमक्खी है वो हनी बनाता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें और क्या होता है आपका, व्हाट आर द अदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपका, वन इज़ योर, ये हो गया, देन दिस वन इज़ ओवर। दे प्रोड्यूस नेक्टर्स, दे हैव suitable ऑर्डर। सुइटेबल ऑर्डर, देखो ये ऑर्डर हो सकता है हमको अच्छा ना लगे, लेकिन बट इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ये ऑर्डर होता है टू, और यू कैन से फ्रैग्रेंस ऑल्सो, ऑर्डर और फ्रैग्रेंस टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स, ओके। द नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, इफ the flowers are small then they are clustered in inflorescence, ठीक है। तो ये हो गया आपका
कैरेक्टर्स। अभी आपका खास करके जो बीटल्स होता है, मैंने ऑर्डर के बारे में बात किया। बीटल एक बहुत ही फाउल ऑर्डर प्रोड्यूस करता है, बहुत गंदा ऑर्डर प्रोड्यूस करता है, जो कि कुछ सॉरी जो कि बीटल से पॉलिनेट होते हैं जो फ्लावर्स, वो फ्लावर एक ऐसा ऑर्डर सीक्रेट करते हैं कि वो बीटल को अट्रैक्ट कर सके और फ्लाइज को भी अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, सो यहाँ पर आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द नेक्टर एंड pollen are the floral reward for the insects। ठीक है, इंसेक्ट क्योंकि फ्लावर को पॉलिनेट करता है, इसीलिए फ्लावर उसको क्या रिवॉर्ड देता है? नेक्टर एंड पोलन। ओके, एंड बदले में इंसेक्ट क्या देता है? इन टर्न द इंसेक्ट पॉलिनेट्स द फ्लावर। ये क्या करता है? फ्लावर को पॉलिनेट करता है। सच रिलेशनशिप is called mutualism। This is called mutualism, very very important। इसके अलावा हमारा और कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जैसे एनिमल्स में आपने देखा होगा जो फ्लावर्स एनिमल के द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं, आई मीन पोलन ग्रेन्स, वो जनरली स्टिकी होते हैं, उनके बॉडी में स्टिक कर जाते हैं। ठीक है, अभी हम दो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। सो एग्जाम्पल्स, फर्स्ट एग्जाम्पल इज Amorphophallus। It is the tallest flower having 6 feet height। कितना बड़ा फ्लावर है आप सोच के देखो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? फ्लोरल रिवॉर्ड, वो जो फ्लावर रिवॉर्ड देता है ना, उसको नेक्टर या पोलन ग्रेन नहीं देता, उसको क्या देता है? इज सेफ प्लेस टू द इंसेक्ट फॉर लेइंग एग्स। तो इतना बड़ा है तो वो उसको प्लेस देता है टू ले द एग्स। तो यहाँ पर फ्लोरल रिवॉर्ड थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और बदले में क्या करता है? आपका जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट इसको पॉलिनेट करता है। तो दिस इज ऑल्सो ए म्यूचुअलिज्म। अच्छा, अभी दूसरा एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, यूका एंड मॉथ। एक स्पेशल टाइप का मॉथ होता है जो कि both of them cannot complete their life cycle without each other। इनका रिलेशन इतना स्पेसिफिक है कि एक को छोड़ के दूसरे का लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाता। Then how they are getting benefited from each other, how the mutualism is established here? So this mutualism is established how? The moth deposits
its egg, its eggs in the locules of ovary. लास्ट सेशन में हम आपको बताए थे कि लोक्यूल्स क्या होता है ऑफ द फ्लावरी ओवरी, एंड इन टर्न मॉथ क्या करता है, मॉथ पॉलिनेट्स द फ्लावर. तो दोनों इस तरह एक दूसरे को बेनिफिट करवाते हैं. एंड ये जो मॉथ है, ये मॉथ ने जो एग ले किया, ये कब तक रहता है, द एग रिमेन्स इनसाइड द लोक्यूल till it hatches into larva. ओके, लार्वा बनने तक तो इसको कितना सेफ प्लेस मिल जाता है, जहाँ पर ये अगर बाहर कहीं देगा तो उसको सेफ प्लेस नहीं मिलेगा, इट कैन नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल. तो ये था हमारा आज का टॉपिक पॉलिनेशन, और इसी के साथ आज का सेशन ख़त्म करती हूँ मैं. और आपको मैं मुझे लगता नहीं कि कल का होमवर्क आपने कंप्लीट किया होगा. सो टुडे आई एम नॉट गिविंग यू एनी होमवर्क. आई विल गिव यू द होमवर्क इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, सो आई होप each and everything are crystal clear to you, and you can attempt any type of question that is asked from this chapter or from the topics taught till now. Okay, so thank you so much.